Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, today we will start I/O management, the chapter number 5 of our textbook. Okay, let's start. First of all, the overview. Operating systems control the devices, means I/O devices, and simply operating system is required to issue certain commands to instruct the I/O devices to carry out the input or output operation, means to read the data from the device or write the data to the device. Then once a device completes its work, means once a device reads the data from the mechanical part of the device to its buffer, it sends an interrupt to the operating system. Then the operating system handles the interrupt to pick up the data from that particular device. Also, if there is an error, then the device reports an error back to the operating system, or it's part of the operating system, for example the driver of the operating system, to handle the errors. Basically, we have been talking about operating system, and one of the major tasks that we talked about in the beginning was the abstraction. Abstractions means to hide all the complexity of the machines and I/O devices. Do you remember? We talked about the hard disk example in the beginning, and I explained you how difficult or how complex instructions are to read and write the data onto the disk. But it is the responsibility of the operating system to provide an easy interface, a very simple interface to the end user, because the end users are not expected to have a very good understanding and knowledge regarding the operation of the devices. So वो जो तमाम complexities हैं are to be handled by the operating system. Then one of the objective of the operating system is to provide device independent interface, means for the user it should not be a different set of instructions to read the data from CD-ROM, or read the data from disk, or read the data from your flash sticks, or printing the data onto the printer, or sending the data to the network interface card. So usually it is expected from the operating system to have the similar interface for all sorts of devices. We'll be talking about the hardware, we'll be talking about the software, but different people concentrate and look to the computer according to their own field of specialization. For example, an electrical engineer might look into the device as a combination of microcontroller, the chips, the electronic parts, the interface, the bus characteristics of the hardware component. Whereas a software engineer always looks into the device as if the types of command that can be given to the device, the type of output the device returns back, the types of errors the device return back to the user. So basically the main view of the computer programmer for a device is its operation. And in this operating system, we are interested. We will not be interested at how the electronics works, but we will, as a in toto, would like to see how the device works, what type of the data that you can write into it, how you can write the data to the device, and how you can read back the data from that particular device. And then we will be talking about the disk as a sample of hardware, or maybe a couple of more if time permits. So let us see the list of devices and their data rates.
For example, the slowest is the keyboard because it requires human interaction. So at best you can type 10 bytes or 10 characters per second. Then your mouse moves across the screen and can give you a stream of data that could be 100 bytes per second. उसके बाद देयर वाज अ मॉडेम जो 56 kbps का मॉडेम है, यानी कि 56 किलोबिट्स पर सेकेंड, और इफ यू डिवाइडेड बाय 8 देन इट विल बी 7 किलोबाइट्स पर सेकेंड. बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करते हैं. Scanner is 400 kilobytes, again a slow device. Then digital camcorder 3.5 megabits per second. 802.11, a wireless device, this is a wireless protocol, can read and write the data at 6.75 megabits per second. Similarly, if we could see somewhere down the line, but let us continue. 52x CD is 7.8 megabits per second. Then you can have Ethernet है जो कि आप देखें इससे 6 है. It's almost the double of this Ethernet interface. फिर आ जाती हैं आपकी storage devices, your flash card 40 megabits, firewire 50, USB 60, और SCSI को अगर आप देखें तो it is 80 megabits. Then gigabit Ethernet is a fast Ethernet that is 125 megabits per second. आपकी SCSI SATA hard drive is much faster than the SCSI Ultra 2, और आप देखें it's 300 megabits per second. और finally, this is a tape streamer. So usually move fast and it record bulk of data per second, so you can read and write at the rate of 300, of the order of 300. Or the fastest one among this is your peripheral control interconnect, your PCI bus, that gives you the rate of 528 megabits per second. दो एक दफ़ा इसको आप glance करेंगे तो I'm sure you will be able to remember that के which device is the slowest one and which device is the fastest one. और फिर it's good to have on your fingertips the speed of different or data rate of different I/O devices. In general, the operating system splits up the devices into two components. One is called the block devices and another one is called the character devices. There are few more that I will be talking about which neither fits in block devices or nor in character devices, but usually what we do, we try to categorize the devices in either of two categories, block or the character device. Block devices, basically your devices that deals with blocks, जैसे कि आपकी memory है, but memory is not a device. तो memory की तरह की जो चीज़ है, that is your hard disk, CD-ROM, USB sticks. These are also all secondary storage devices, and that can deal with a block size of half K, means 512 bytes to 32K size. But there are few devices as I discussed in the last lecture के disk के ऊपर, you can have a block size of 64K, but usually it is not 64K, usually it is between 512 से 32K तक. Character devices that accept stream of characters without block structure, और ये भी बड़े मज़े की बात है कि ये character stream में deal करती है, लेकिन most of the time we convert the stream of characters into the block also. हम इसको थोड़ी देर में discuss करेंगे. Printer, your mouse, your network interface cards are the examples of the character devices. फिर मैंने आपसे कहा था कि there are few devices which neither fits in to block device or into a character device, such as your clock. So we will be talking about the clock hardware and software, its working, inshallah, in one of the lecture very shortly. Division allow the operating system to deal with devices in device independent manner. जब आप categorize बना कर देते हैं devices को, तो फिर operating system जो है category wise उसको deal करता है. And the last slide मैंने बात की थी कि device independent means ये operating system उसको बहुत ज़्यादा generalized form के अंदर
हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल ऑल दी योर स्टोरेज डिवाइसेस लाइक जो मैंने बताया डिस्क, CD-ROM, USB, आप देखें कि यू कैन जस्ट हैंडल ऑल दीज डिवाइसेस जस्ट लाइक द सिमिलर वन. आप उसको कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्सेप्ट मे बी वंस यू आर राइटिंग इनटू द CD-ROM then you have to go through a certain procedure. Otherwise reading from CD-ROM or the hard disk or from the your flash stick is always the same. So the file system usually deals with the blocks. मैंने आपसे कहा था ना कि even character devices को भी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि similar interface में लेकर आएं और उसको भी we should be dealing like the block devices. This is just the structure or the you can say the geometry of the hard disk. अगर hard disk को आप देखें तो hard disk के अंदर there are number of plates. I think I'll be talking about the hard disk in one of the lecture. So just here quickly, these are concentric circles जो हैं they are called the track. So basically a red color का जो ये मैं circle mark किया है you can consider it as a track, one track that contains B is a sector. This is the geometry of the sector. Okay, the inner sector and these are the outer sector. और अगर हम इसको इस तरह भी देखें तो ये पाई है, पाई जो बन रही है on the with a blue colored pie is basically a sector B. C is a geometrical sector. अगर इसके अंदर हम ये देखें इसमें कलर you will find the same color but it's a bit different. I tried to have it different but it is यहाँ से लेके this part. Let me pick up my pointer. Okay, so from this part to this part is basically your C. Then D is a cluster. इसमें you have one sector, set of blocks written on the disk together. Yeah, this could be it could be defined as a set of sector forms a cluster. Cluster क्या होता है कि things which are combined together. तो आप देख सकते हैं कि three sectors are combined and we have defined the combination of three sectors as a cluster. So this is a certain basic concept जिसकी कि शायद हमें अभी ज़रूरत पड़े in the next topic that we will discuss. So later on when we will be talking about the hard disk, then we might go into much more detail of the hard disk. Device controllers. अगर आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोड्यूस किया था डिवाइस कंट्रोलर which was the electronic part. Basically the I/O unit, the device is again split up into two components. एक तो device itself which is usually a mechanical component or might have some mechanical and physical shape and have inside some mechanical gadgets, but the part that is on the computer side which deals with that particular device is the electronic part and we call it as a controller. So controller could also be may not be independent complete card, but it could be a single chip on the motherboard, and we usually have the connectors with plug in to the cables of device. यानी कि device को physically जब हम जिस part से connect करते हैं computer के, usually it is a cable that is linked with the controller of that particular device. So sometimes we can link more than one identical devices to that controller. For example, जो SCSI controller है, you can connect up to 8 SCSI drives with one particular SCSI interface. और ये 8 SCSI drives जो है, it could have the SCSI CDs also. यानी कि 8 की 8 आपकी SCSI hard disk नहीं हो सकती, हो भी सकती है, but it could be the combination of the hard disk and your CD drives also. So one controller could connect multiple devices together on one single controller chip.
If we talk about the disk, basically disk, you have a variety of disk with a smaller size. For example, nowadays still we could find 80 GB hard disk, and yet we can find 200, 400 and 500 GB hard disk and even 1 terabyte hard disk. So obviously the geometry varies, जैसे जैसे उसका capacity and size increases, the geometry varies, but disk might have of the order of tens of thousands of sector, and usually half K bytes per track of different specs. But it could be 512 bytes or half K per sector also, or it could be more than that, and depending upon the हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं, किस साइज की हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं. बट अपेरेंटली इट लुक सेम, it looked to the controller the same. वो जो सारी उसकी complexity है are abstracted by the controller for the operating system. Serial bit streams comes of the drive. Basically you say that it's a block device, but primarily जो मैंने आपको last lecture में बताया कि यो arm जो है hard disk का that moves to the cylinder, then the rotational delay, वो जो track है that comes, rather sector that comes under the head, then it start reading. When it start reading, it starts sending the serial bits. जैसे जैसे वो रीड करता जा रहा है वैसे वैसे as it is वो serial bits जो है वो आती जा रही हैं. What the controller does, basically it records all the serial bits into its buffer that is present within the controller. जब वो सीरियल बिट्स जो है वो जमा होके when they become one block, जब when one buffer is filled out, then this controller carries out some check which is called the checksum or cyclic redundancy check, basically to see that if was there any error or not. So there is, once the stream comes in, then in the beginning of the stream is the preamble. Preamble क्या है कि we write down, जैसा numbering करते हैं ना, so on each sector we write down the identification of that sector so that you ensure कि the mechanical part of the hard disk has not made any mistake और ये किसी wrong cylinder से या wrong sector से data read नहीं कर रहा. So basically when we format the hard disk, we put the preamble in the beginning of the sector. वो जो preamble है that contains the information that is the sector number, cylinder number, the sector size, etc., etc., etc. तो ये information जो है वो पहले controller के पास आती है. It checks that whether the hard disk has provided the required exact track or sector number for the data from the precise location, or there is any mistake. Then it carries out the some checks जो मैंने आपको बताया कि उसकी क्वालिटी है कि कहीं बिट स्ट्रीम वहाँ से रीड करने में और कंट्रोलर तक आने में कोई डेटा आपका ड्रॉप तो नहीं हो गया. So a controller assembles block from bit stream, does error correction and puts it into the controller. यानी कि वो error correction जो है वो basically controller में रखने के बाद नहीं, बल्कि once it is there into the buffer, उस वक्त पे error correction जो है वो carry out की जाती है. Okay, blocks are what are sent from the disk. Basically वो जो streams है वो हम कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं ब्लॉक की फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो डेटा आ रहा होता है वो सारे का सारा ब्लॉक नहीं होता, बल्कि द डेटा जो है वो स्ट्रीम फॉर्म में होता है विच इज असेंबल्ड इनटू अ ब्लॉक एट द कंट्रोलर लेवल. ओके, नाउ how we read the data. We have a couple of ways to read the data. Rather, we can say that there are 2-3 different ways जिस तरीके से we can read the data from the device, or one of the method which is called a memory mapped I/O. अगर आपको याद होगा मेमोरी मैप्ड I/O को हमने टच किया था इन दी चैप्टर ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, याद है ना? तो थोड़ा सा आप इसको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं.
So a controller has registers which operating system can write and read. Basically, the operating system can issue the commands to the device through a controller. अगर आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करें, हमने क्या बात की, हमने कहा एक मैकेनिकल पार्ट होता है जिसको हम डिवाइस कहते हैं, उस मैकेनिकल पार्ट को डील करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कंट्रोलर कहते हैं. ठीक हो गया, डिवाइस आ गई, उसके बाद कंट्रोलर आ गया. अब हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है. अब इसकी भी डाइसेक्शन करेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है विच डील्स विद द कंट्रोलर. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम से वांट टू राइट means operating system have to give a command to the device to write down, to read the data or to write the data onto the disk, or the operating system may like to read, for example, means the operating system want to read the status of the device, means के device जो है वो on है या device off है, या what is the status of the device. So these are the examples of the commands that the operating system gives to the device. लेकिन ये command कहाँ देता है, कंट्रोलर के अंदर registers होते हैं, उन registers को read और write करता है operating system in order to issue the commands or in order to learn from the status of the device. Normally उसको जो control registers हैं, read करने का मतलब उसका device का status मालूम करना, और write करने का मतलब उसको instructions provide करना. These instructions could be for reading the data from disk or from writing the data onto the disk. दोनों तरह की चीजें जो हैं वो write form में आएगी. कोई instructions को आपको write करना है registers में. Each device has got data buffers. डेटा बफर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि हार्ड डिस्क का जो स्ट्रीम आ रही होती है वो उसके डिवाइस के हार्ड डिस्क के जो कंट्रोलर है उसके डेटा बफर में सेव होता है. सो डिवाइस हैव अ डेटा बफर व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड एंड राइट. Then there are certain devices. If we talk about the hard disk, so yet it takes some time to read and write the data. But there are certain devices which are very fast and very quick. For example, if you want to display something onto the display screen, your LCD screen, your monitor, then it's very quick and fast. You just need to write down the data onto the video RAM of that display. So these are basically the pixels. Pixels कहते हैं picture elements को of the screens. It quickly converts into the form of the pixels and then these pixels are displayed onto the screen. अब ये controller का काम है कि वो उसका vertical scan और horizontal scan to keep the picture alive, to keep the text alive means visible, displayable form के अंदर, illuminated form के अंदर वो screen के ऊपर रहना चाहिए. उसके लिए जो screen जो है horizontal, vertical scan करती है. But on the side of the operating system, it's very quick and fast. Quick and fast means that just you have to write the data into the video RAM and that data is displayed onto the screen of the monitor. Okay. Then how does the CPU communicate with registers and buffers? That is the questions जो मैंने अभी आपसे कहा था we need to learn. So for that purpose there are three different ways obviously. Three different ways. Number one, अगर आप देखें यहाँ पर ये रहा. This is number one कि we have an address space, memory address space which is independent address space. It has nothing to do with your devices. And we have a separate I/O ports. ये वो I/O ports हैं जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रीड और राइट करता है और ये आपकी मेमोरी से इंडिपेंडेंट है. और दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज used by the IBM 360 जो अर्वी कंप्यूटर्स है उसमें इंडिपेंडेंट I/O स्पेस थी. और इसके मैं बताता हूँ कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई फॉर एग्जांपल PDP-11. PDP-11 ने क्या किया कि एक सिंगल एड्रेस स्पेस रखी मेमोरी की और इसमें कुछ एड्रेसेस जो हैं टॉप के जो एड्रेसेस हैं वर रिजर्व्ड फॉर द I/O. यानी कि इफ यू आर राइटिंग इनटू द मेमोरी
or if you are writing into the IO devices, it is one and the same thing, or you are basically using the memory address. ओके, वर्चुअल जो एड्रेस है उस वर्चुअल एड्रेस का कुछ पार्ट जो है वो आपका मेमोरी का है और थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है आपने रिजर्व किया है फॉर द टू एक्सेस द आईओ डिवाइसेस. अब सिस्टम नोज इट वेरी वेल कि इस एड्रेस से इस एड्रेस तक फॉर एग्जांपल जो है वो आपका आईओ डिवाइसेस जो है उसका एड्रेस है. ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर आप एक खास एड्रेस के ऊपर रीड एंड राइट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर इंटेंडेड टू रीड एंड राइट फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस, और अगर आप उस पार्ट से बाकी कर रहे हैं तो यू वांट टू रीड एंड राइट फ्रॉम द मेमोरी. इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में. नेक्स्ट इज सी विच इज अ हाइब्रिड अप्रोच जो कि यूज करता है पेंटियम. पेंटियम में अगर आप देखें तो पेंटियम, व्हाट द पेंटियम डज, इट बेसिकली use the hybrid approach and use 0 to 64K as a IO ports, okay, and then ये इसको इंडिपेंडेंट कर देता है आईओ पोर्ट्स को, एंड देन इट यूजेस 64K टू 1 MB एज ए डिवाइस डेटा बफर. यानी कि पेंटियम में क्या है कि जो डेटा बफर है, डेटा बफर कहां पे होता है, कंट्रोलर के अंदर जो एक बफर होता है उसको डेटा बफर कहते हैं. तो अगर डेटा बफर से रीड राइट करना है तो उसको तो आपने पार्ट बना दिया है मेमोरी का, और जो आपकी एक्चुअल पोर्ट्स हैं डिवाइसेस की, जो याद है मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था, जो केबल्स आप लगाते हैं उनको आपको यू हैव टू गिव देम अ यूनिक एड्रेस. तो वो जो पोर्ट्स को एड्रेस दिया है वो एड्रेस तो कर दिया सेपरेट, और उसको कह दिया कि टू अच्छा पोर्ट्स क्यों यूज होती है, मैंने अभी आपको बताया था. पोर्ट्स हम यूज करते हैं टू इशू द कमांड्स. हमने कमांड्स देनी है उसको, तो उसके लिए हम उसके रजिस्टर्स यूज करते हैं, और उनके रजिस्टर्स की जो एक्सेस है वो हम प्रोवाइड करते हैं उन पोर्ट्स के जरिए. इसी तरीके से उसका जो डेटा बफर यूज करते हैं वो भी आप दो पोर्ट्स की तरफ से होता है. लेकिन बट व्हाट वी डू कि डेटा बफर हैज गॉट इट्स ओन एड्रेस, क्योंकि डेटा बफर के अंदर भी आपने वर्ड बाय वर्ड रीड राइट करना है, तो आपको उस बफर के अंदर का एड्रेस भी चाहिए होता है. ठीक है, तो अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस है तो फिर आप बड़ी आसानी से उसके डेटा बफर के एड्रेस को हैंडल कर सकते हैं. तो उसके लिए जो IBM करता है, IBM ने 640K से 1 MB तक का जो चंक है, इस चंक को सेव करके रखा हुआ है फॉर दी हैंडलिंग दी डिवाइसेस, और इसको हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड IO. थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं. हाउ CPU एड्रेस रजिस्टर्स एंड बफर्स. मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको पोज किया उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. द फर्स्ट स्कीम विच हैज द सेपरेट मेमोरी एंड IO स्पेस, कौन सी, ये वाली, ये फर्स्ट वन. ओके, separate memory and IO space. When CPU wants to read from the memory or IO port, it puts read on control line. अब कंट्रोल लाइन क्या है, आपकी जो बस की कंट्रोल लाइन है उसके ऊपर वो रीड कमांड देता है, एंड पुट्स द एड्रेस ऑन द एड्रेस लाइन. ठीक है, एड्रेस को तो उसने एड्रेस लाइन पे रखना है, लेकिन जो उसकी कमांड बस है, कंट्रोल बस है, उसके ऊपर वो उसकी इंस्ट्रक्शन को राइट करता है. देन इट पुट्स IO स्पेस और मेमोरी स्पेस ऑन अ सेपरेट सेकंड सिग्नल लाइन to differentiate read from memory space or IO space. This is important. ठीक, क्या कि we put it puts the IO space और memory space, दो स्पेस है. मेमोरी स्पेस जो है वो एड्रेस स्पेस है जिससे आप उसको मेमोरी को एक्सेस करते हैं, और जो IO स्पेस है वो है आपकी डिवाइसेस जो है जिसको आपने हैंडल करना है. तो इट पुट दिस सिग्नल, एक सेकंड सिग्नल देता है टू डिफरेंशिएट कि ये जो रीड करनी है ये एड्रेस जो आपने प्रोवाइड किया है ये मेमोरी का है या IO डिवाइस का है. ठीक, समझ में आई बात. यानी कि जो उसकी जो कमांड है, पहले वो कमांड पुट करता है और फिर एक सिग्नल देता है, सेकंड सिग्नल लाइन, टू डिफरेंशिएट दैट इट शुड रीड फ्रॉम मेमोरी स्पेस और फ्रॉम IO स्पेस. ठीक, सो इट रिक्वायर्स अ स्पेशल IO इंस्ट्रक्शन.
अगर तो वो मेमोरी स्पेस से ही उसने रीड करना है, अगर तो उसका जो एड्रेस स्पेस है आईओ का वो मेमोरी के अंदर ही आप फिट इन कर दें, तो वट एवर द कमांड्स आर देयर टू रीड एंड राइट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, यू कैन यूज द सेम कमांड्स. लेकिन अब अगर आपने उसको सेपरेट किया है तो देन यू नीड द सेपरेट कमांड. फॉर एग्जाम्पल इन एंड आउट. आउट टू राइट द डेटा onto the port and in to read the data from that port, and these instruction commands are in assembly language. और obviously ऐसी कोई command जो है वो C language के अंदर available नहीं है. So you have to put a patch of assembly language into your code and you cannot write the device driver in C language. So ऐसी सूरत में once you have a separate IO space and a separate memory space, तो ऐसी सूरत में आपको सहारा देना पड़ता है assembly language का to read and write the device registers. Okay. नेक्स्ट इज अप्रोच क्या है? नेक्स्ट अप्रोच जो मैंने आपको सेकंड बताई थी, जिस इज कॉल्ड अ मेमोरी मैप्ड अप्रोच. मेमोरी मैप्ड अप्रोच में आपको याद है व्हाट वी हैव डन, कि वी हैव यूज्ड दिस सिंगल एड्रेस स्पेस और फिर बस उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा पार्ट मेमोरी का है और कौन सा पार्ट जो है वो आईओ पोर्ट का है. ऐसी सूरत में आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी. सो इट पुट द एड्रेस ऑन द एड्रेस लाइन एंड रेड द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, कंपेयर एड्रेसेस विद द रेंज दे सर्व एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. समझ में आई बात? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना काम सिर्फ इतना करना है कि एड्रेस बस के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि आई वांट टू रीड अ ब्लॉक ऑफ दिस एड्रेस, और ये एड्रेस बस के ऊपर चला गया. नाउ इट इज अप टू द मेमोरी और इट इज अप टू द controller of the IO devices कि वो both will look into the address. If the address belongs to IO devices, then IO device जो है that will respond. If the address belong to memory, then the memory will respond. आसान हो गया ना, और simplified भी हो गया. So मेमोरी मैप की एडवांटेजेस अब क्या है? जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें हम थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी को भी डिस्क्राइब करेंगे. यू डोंट नीड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू रीड राइट, सो द कंट्रोल रजिस्टर्स कैन राइट अ डिवाइस ड्राइवर इन C. Since you are not distinguishing between the memory and the IO devices, लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से you can perform the read write as if you are doing a read write into the memory. वही instructions हैं और वो instructions जो है आपके पास C language में available है. Therefore you can write a device driver in C language because you don't require the special assembly language instructions. So that is a big advantage. Then you don't need special protection to keep user from doing IO directory. क्यों? क्योंकि आप एड्रेस उसके ऊपर राइट डाउन करेंगे तो इट इज द सिस्टम, जो डिवाइस है उसने रिस्पॉन्ड करना है. अब वो यूजर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोलर के रजिस्टर में रीड राइट नहीं कर रहा. यूजर ने तो एक रीड एड्रेस देना है और वो एक बस के ऊपर उसने वो एड्रेस प्रोवाइड कर देना, आई वांट टू रीड दिस. If that address belongs to that particular device, then the device will respond, otherwise the memory will respond. और obviously जब मैं कहता हूँ कि they will respond under complete framework, and that framework has lot of protection and lot of checking purposes also. So you put each device driver on different address space of different pages to avoid conflict. अब इसका एक फर्दर एडवांटेज क्या हुआ कि आप जो आईओ एड्रेस है ना उसको आप इंटेलिजेंटली इस तरीके से स्प्लिट अप करें कि एक डिवाइस के जो आईओ एड्रेसेस हैं वो एक रजिस्टर में एक पेज में आ जाएं, दूसरे डिवाइस के दूसरे पेज में आ जाएं, तीसरी डिवाइस के तीसरे पेज में आ जाएं. तो यू कैन स्प्लिट अप the addresses of the IO addresses of different devices on different pages. अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आपको ये करना होता है कि आपने ये पेजेस जो हैं वो एलोकेट करने हैं यूजर को, क्योंकि यूजर ने उस एड्रेस को, उस डिवाइस को एक्सेस करना है. सो व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डू, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर पेज टू द यूजर प्रोसेस.
अब वो जो पेज यूजर प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा, इसका मतलब हुआ कि डिवाइस ड्राइवर विल बिकम द पार्ट ऑफ द यूजर प्रोसेस। इसके अब क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? जब डिवाइस ड्राइवर जो है वो यूजर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हैज हैंडेड ओवर द पेज टू द यूजर प्रोसेस, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड जो पेज था, जो मैंने अभी शुरू में आपको एक्सप्लेन किया, दैट विल बी एलोकेटेड टू यूजर प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस ड्राइवर इज नो मोर पार्ट ऑफ द कर्नल। तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द कर्नल एट बिग एडवांटेज, क्योंकि वो एक लग्जरी है। बिग कर्नल के लिए यू रिक्वायर बिग स्पेस, तो यू विल रिड्यूस द साइज ऑफ द कर्नल। सेकंड, अवॉइड डिवाइस ड्राइवर्स इंटरफेयरिंग विद अदर्स। जब इस किस्म की सिचुएशन हो, अगर ये सारे के सारे कर्नल का पार्ट होते तो देयर इज अ चांस, कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि एक डिवाइस ड्राइवर जो है दूसरे डिवाइस ड्राइवर के साथ इंटरफेयर कर सकता है। ओके, एड्रेस मिक्स मैच हो सकते हैं, कमांड्स आपने एक ड्राइवर को दी और एड्रेस आपने दूसरी डिवाइस का दे दिया, सो देयर कुड बी अ चांस। बट इफ यू डू दैट, जो मैंने ऊपर आपको टेक्निक बताई, अगर हम उस टेक्निक से करेंगे, देन इट अवॉइड द डिवाइस ड्राइवर इंटरफेयरिंग विद अदर डिवाइस ड्राइवर्स। और मजे की बात क्या है तीसरी, कि इट अवॉइड क्रैश ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू अ बगी ड्राइवर। समटाइम आपको पता है जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, अभी हम अगले लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल, डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। जिसने अपनी डिवाइस बनाई है वो एक डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करता है और उस डिवाइस ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बना देते हैं। अब ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बनाते हैं एंड इफ देयर इज अ बग, तो फिर क्या होगा कि वो क्रैश करेगा। अब ड्राइवर क्रैश नहीं करेगा, अगर ये ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करेगा। लेकिन in this particular technique, when the driver is in the user address space, तो क्रैश हो जाए, so what, एक यूजर का प्रोसेस क्रैश होगा, whole operating system means whole environment will not crash. So that is really another big advantage. Next, every instruction that can reference memory can reference control register as well. ये मैं बात बता चुका हूं पहले, क्योंकि अब आपके लिए एक ही जैसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। Let's take an example. ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, लूप टेस्ट पोर्ट 4, इट चेक्स द पोर्ट 4 इज 0। आप पोर्ट देख रहे हैं, पोर्ट का क्या मतलब है, देख रहे हैं कि क्या वो डिवाइस की वो पोर्ट जो है वो 0 हो जाती है। अगर वो 0 हो जाती है फॉर एग्जांपल, या उसको सेट चेक कर सकते हैं या रीसेट चेक कर सकते हैं। सेट कहते हैं 1 को, रीसेट कहते हैं 0 को। सपोज अगर 0 का मतलब है कि डिवाइस इज अवेलेबल, 1 का मतलब है डिवाइस इज बिजी, सो यू कैन जस्ट चेक दैट ब्रांच ऑन इक्वल, देन इसका मतलब है कि अगर वो 0 हो गई है तो आप क्या करें, रेडी मींस डिवाइस इज रेडी, अदरवाइज ब्रांच ऑन लूप, अदरवाइज कीप ऑन चेकिंग द पर्टिकुलर डिवाइस। Okay, so you if you are using the device as a memory mapped IO और उसकी एड्रेसिंग आप कर रहे हैं और आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं आप यूज कर रहे, तो फिर what we can see, if no memory map IO instructions, just references registers, the registers are to be loaded in CPU, then tested, need more instruction to do test read। क्या कहने का मतलब है, सिंपल आसान जबान में मतलब है कि अगर आपकी मेमोरी मैप्ड आईओ यूज नहीं कर रहे, ऐसी सूरत में ये आपकी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है। अब आपको पहले ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको पहले लोड करना है सीपीयू के अंदर, एक इंस्ट्रक्शन ये चाहिए और फिर दूसरा इसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हर इंस्ट्रक्शंस आपको 2 इंस्ट्रक्शंस में चाहिए होगी क्योंकि आपको वो इंस्ट्रक्शंस लोड करनी है। बट इफ वी आर डूइंग अ मेमोरी मैप्ड आईओ तो फिर ऐसी सूरत में आपको वो डबल काम जो है वो नहीं करना पड़ेगा। If the instructions are special instructions, then
it will slow down the response of detecting the device. For example, अगर आपने सिंपली यही टेस्ट करना है कि क्या डिवाइस रेडी है या नहीं, अगर तो वो आपकी मेमोरी मैप्ड आए हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको एड्रेस कर सकते हैं और उसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आपको दो काम करने पड़ रहे हैं. थोड़ा सा जरा सोचें कि कौन से दो काम. पहली बात कि वो एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन है जो कि उस कंट्रोलर की है. उस कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके उस डेटा को लेकर आ रहे हैं हम अपने सीपीयू के पास, और सीपीयू जो है उसको फिर टेस्ट कर रहा है. अगर ये उसके डायरेक्टली आप मेमोरी मैप्ड आईओ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में जाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट उन इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करें और वो उसके साथ लिंक्ड अप है, और इसका मतलब है कि डिवाइस का स्टेटस भी आप डायरेक्टली रीड कर रहे हैं उसकी डिवाइस से, क्योंकि आपका मेमोरी मैप आईओ आप परफॉर्म कर रहे हैं. समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं. मेमोरी मैप्ड डिसएडवांटेज. When there are advantages of certain concept, then obviously it has some drawbacks or disadvantages as well. Number one, caching a device control register. We have studied that while processing the data, the memory provide a special buffer which are inside the CPU, which is called a cache. तो हम क्या करते हैं कि जब किसी इंस्ट्रक्शन को फर्स्ट टाइम रेफर करते हैं, डेटा को फर्स्ट टाइम रेफर करते हैं, वी कैश मींस उसकी कॉपी जो है वी कीप इट विद इन द सीपीयू. अगर हम ऐसी सिचुएशन में किसी डिवाइस के रजिस्टर्स को अगर हम स्टेटस को रीड करना है ना, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैंने आपको बताया कि वी हैव टू रीड इट इनटू द सीपीयू. जब आप सीपीयू में रीड करेंगे तो वो तमाम एड्रेसेस जो हैं उसको आप कैश करवेंगे. अब सीपीयू को तो नहीं पता कि ये आप कैश नहीं कर सकते, unless until you have a special hardware to protect that, कि भाई ये कैश नहीं कर सकते. तो what will happen, जो उसका स्टेटस है डिवाइस इज नॉट रेडी वाला, वो कैश हो जाएगा. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेश स्टेटस डिवाइस का उठा ही नहीं रहा, वो कीप ऑन रीडिंग द स्टेटस विच इट हैज पिक्ड अप इन द कैश. अब वो सारी जिंदगी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टेस्ट करता रहेगा, क्योंकि स्टेटस जहां पर अप होना है, रेडी होना है, वो स्टेटस जो है इज नॉट अवेलेबल इन द कैश. बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैशिंग नहीं होनी चाहिए. अगर आप मेमोरी मैप्ड आईओ कर रहे हैं तो आप उसको कैश करवेंगे तो डिवाइस का जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं होगा. कैश को तो अपडेट नहीं करते. हाँ, कैश में कोई मॉडिफिकेशन होती है तो बैकएंड पे जाके अपडेट करते, लेकिन अगर बैकएंड पे कोई चीज चेंज हो रही हो तो फिर कैश के अंदर चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिस्क डेटा को उठाकर कैश किया हुआ और वहां से आप यूज कर रहे हैं और बैकएंड पे आप डिस्क के डेटा को चेंज करवे तो वो कैश में अपडेटेड चीज नहीं जाएगी, लेकिन वाइस वर्सा. If you have copied some data from hard disk into the cache and you modify it into the cache, फिर उस कैश को मॉडिफाइड को डिस्क पे जाके आपको अपडेट करना होता है. ठीक. अब अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका बैक एंड के ऊपर डिवाइस रेडी होगी तो वो कैश को पता नहीं चलेगा. तो ऑब्वियसली इसके लिए मैंने आपको कहा कि यू रिक्वायर अ हार्डवेयर दैट शुड बी एबल टू डिसेबल कैशिंग व्हेन इट इज वर्थवाइल. ठीक है, और ये हार्डवेयर जो है यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव. देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी हैव टू रिस्पॉन्ड टू मेमोरी रेफरेंसेस. ओके, ये बड़े मजे की चीज है. बेसिकली क्या होता है कि आपकी, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ सिंगल बस. उस बस के ऊपर एक एड्रेस जाएगा जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया. अगर वो एड्रेस बिलोंग्स टू memory, then the memory will respond. If the address belongs to IO device, then IO device will respond. What will happen? अगर आप एक अलग से बस बना दें बिटवीन द सीपीयू और मेमोरी और उस सिस्टम बस को आप यूज ही नहीं कर रहे, तो हाउ डू द आईओ डिवाइसेस नो कि उनका एड्रेस जो मेमोरी की तरफ जा रहा है वो मेमोरी उस एड्रेस को तो रिस्पॉन्ड आईओ डिवाइस ने करना है. आईओ डिवाइस को पता ही नहीं, क्योंकि आईओ डिवाइस की बस पे वो एड्रेस आ ही नहीं रहा.
So how can IO devices could respond? तो ये यहाँ पर हमने explain किया है. Works with the single bus because both memory and IO looks at address on bus and decide which one to respond. यानी कि अगर तो एक बस होगी तब तो दोनों को पता चलेगा, जिससे रिलेटेड होगा वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा, और अगर वो रिलेटेड नहीं होगा तो हाउ डू सिस्टम कुड रिस्पॉन्ड. So that is a problem. So harder with multiple buses because IO devices can't see their addresses reference to the buses not connected with them. जो बस connected ही नहीं है IO device के साथ, उसका वो respond कैसे कर सकता है? अगर इसकी आपने example देखनी है तो यहाँ पे देखें. अगर तो you put an address here, CPU puts an address here. If the address belongs to the memory will reply to provide the data, read and write the data, or if the address belongs to the IO bus, then this IO bus responds to that. But what will happen? If the CPU has a direct connection with the memory, ये बस इसकी एक independent आपने बस लगा दी है, and it writes, then how could this memory, CPU reads and write the memory, go over this high bandwidth bus? ये fast speed bus है, और इसकी देखें इसकी bandwidth भी ज़्यादा है. जिस तरह ये ना ये वाली जो रोड है, ये एक सिंगल वन वे रोड है, और ये अगर फर्ज किया बहुत बुलेवार्ड है, चौड़ी रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक ट्रेवल कर सकती है. तो बैंडविड्थ का ये मतलब है इसका. सो अब एड्रेस इसने मांगा, रीड यहाँ से करना था, लेकिन इसने तो मेमोरी मैप किया हुआ है, तो ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि इसने जवाब देना है. इसको पता ही नहीं बेचारे को, IO डिवाइसेस को, कि जनाब आई हैव टू रिस्पॉन्ड. सो दिस मेमोरी पोर्ट इज टू अलाउ IO डिवाइसेस टू एक्सेस टू द memory. So basically there should be some mechanism कि आपकी IO devices को पता चले कि respond उन्होंने करना है. ये कैसे हो सकता है? There are 2-3 solutions which are suggested to that. Number 1, try IO device if memory bus not respond, यानी कि आप CPU जो है वो एक instruction लिखे, और अगर memory के पास एड्रेस नहीं होगा तो memory will not respond. तो ये क्या करे, फिर IO डिवाइसेस को ट्राई करे, यानी कि पहले ये इससे मांगे डेटा, इफ इट डज नॉट रिटर्न बैक द डेटा, फिर CPU जो है वो डेटा इस बस के ऊपर डाले कि मुझे आई नीड्स, और एक्सपेक्ट करे कि IO डिवाइस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी. ओके. सेकंड सॉल्यूशन, पुट्स स्नूपिंग डिवाइस, यहाँ पे अपना एक जासूस बिठा दे. ये जासूस क्या करे कि जो एड्रेसेस जो इससे रिलेटेड है, जैसे ही वो एड्रेस आए वो एड्रेस जो है ना उसकी कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड कर दे. ठीक. और ये जासूस कौन सा होगा? ये एक हार्डवेयर होगा. दैट हार्डवेयर विल फिल्टर आउट द एड्रेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द IO डिवाइस, और वो उसके एड्रेस को यहाँ पर देगा, सो दैट दिस IO डिवाइस कुड रिस्पॉन्ड. थर्ड सोल्यूशन, फिल्टर एड्रेसेस. जो काम हार्डवेयर कर रहा है, जो कि पेंटियम अप्रोच है, वो काम खुद the MMU कर सकता है, that hardware कर सकता है. It filter the addresses. For example, 640K to 1 MB could be marked as non-memory range and forwarded to PCI bus. ठीक है. अगर any address which belongs to that, तो उसके भी आप एक हार्डवेयर सर्किटरी, बजाय इसके कि एक जासूस हार्डवेयर डाला जाए, हम ये कर सकते हैं कि ऑफिशियली एक फिल्टर लगा दे, और whatever the addresses जो भी आपने रेंज दी है, उस रेंज में जो एड्रेस आए वो आप सिस्टम बस को दे दें, और बाकी आप एड्रेस जो है वो उसको दे दें. सो मेन पॉइंट, हैव टू कॉम्प्लिकेट हार्डवेयर टू मेक दिस वर्क. सो बेसिकली आपको एक कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर चाहिए. और एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये है कि IO डिवाइसेस रिस्पॉन्ड वेरी स्लोली एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी. IO डिवाइसेस जो है वो मैच नहीं कर सकती, क्योंकि मेन मेमोरी आपको याद है, मैंने ये पिछले लास्ट लेक्चर में आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल के आप मेन मेमोरी को यू कैन एक्सेस एट द ऑर्डर ऑफ 10 नैनोसेकंड्स, फॉर एग्जांपल 6 नैनोसेकंड्स, जबकि आपकी हार्ड डिस्क कुड रिस्पॉन्ड इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली सेकेंड्स. तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि नैनो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स के अंदर देयर इज अ 1 मिलियन का, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलियन का फर्क है. तो your hard disk is million times, 100,000 times slower than the main memory. तो उससे भी
जो आप एक जैसी डिवाइसेस, एक बहुत फास्ट है एक बहुत स्लो है, तो दैट कुड आल्सो बी अ डिफिकल्टी इफ यू try to provide the snooping jasus hardware into the system. ठीक? Next is DMA, Direct Memory Access. अगर आपको याद हो तो आई हैव टॉक्ड अबाउट DMA, आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने आपको क्या बताया था कि यू carry out read and write operation without involving the CPU. सिर्फ इतनी डेफिनेशन हमने की थी कि हमने मेमोरी में डिवाइसेस के साथ और मेमोरी से डिवाइस या डिवाइस से मेमोरी जो रीड राइट है, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर विच इज कॉल्ड DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि CPU को इन्वॉल्व नहीं करता. सो उसी को अब हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देखना चाहेंगे. CPU could request data 1 byte at a time from IO controller or 1 word at a time from the IO controller. If you use the CPU to read and write the data, so it's a big wastage of the CPU time. So we said that कि बजाय इसके हम CPU को engage करें, हम एक intelligent controller लगाते हैं जिसको हम कहते हैं DMA. DMA controller could be on the motherboard. So normally use one controller for multiple devices. हम generalized DMA controller भी बना सकते हैं, है, they do exist and they provide the service, or there could be a DMA controller customized to special devices also. So CPU read and write to the registers in DMA controller. अब CPU जो है अपनी request जो है वो DMA controller को कर रहा है instead of the devices. So the memory address is provided onto the register. Then the byte count is also provided. Byte count क्या है कि कितना डेटा आपने रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, कितना डेटा रीड करना है, and then it writes the instruction to the control register. So IO port, direction of the transfer, transfer units in byte by byte करना है या word by word करना है. ट्रांसफर मोड जो है वो word by word भी हो सकता है और burst mode भी होता है. In the burst mode क्या होता है कि number of bytes that can be transferred in one single go. We'll be talking about in a few minutes time. So control registers में तो ये वाली information provide करेगा controller. Where is my cursor? ये रहा, ये. These are the instructions. Specifications हैं basically that are provided into the control register. और byte count register में बताता है कि how many time the process should be repeated, और यहाँ से बताता है कि which is the memory address. और लिखना है या read करना है या write करना है वो यहाँ पे direction से बता देता है, direction to transfer. If it is memory to device means you are going to write it onto the device. If it is from device to memory means you want to read it from the device to the main memory. How does it works? इसकी भी हम बात करते हैं. When DMA is not used, थोड़ा सा उसको concentrate करने की भी अगर हम एक ये situation की बात करें, then the controller reads a block into the memory buffer. अब आपका जो controller है device का, वो आपका data read करता है device से और वो data कहाँ पे save करता है? अपने buffer में. Where is that buffer? Memory buffer? It's not in the memory. That memory buffer is onto the device controller. Then it computes the checksum. Checksum कहते हैं कि error correction code, ECC, या cyclic redundancy check. There are different techniques to check whether के transfer के दौरान data आपका lose तो नहीं हुआ. इसको हम कहते हैं checksum. Then it interrupts. Once the data is there into the device control memory, then it sends an interrupt to the CPU, and then it's the operating system that read byte by byte or word by word at a time. और ये system bus को use करते हुए उस data को device control register से main memory में transfer करता है. कब? जब आपके पास DMA नहीं होता. If you are using a DMA, तो फिर DMA जो है वो कैसे काम करेगा? DMA काम करने के लिए देखें कि ये CPU है. It writes the instruction to the DMA controller और वो उसमें उसको एड्रेस बताएगा, वर्ड काउंट बताएगा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, मोड है, वो सारी डिटेल है. ये बाइट काउंट के आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, वर्ड बाय वर्ड है तो कितने वर्ड्स हैं और बाइट बाय बाइट है तो कितनी बाइट्स हैं, और ये एड्रेस है.
और रीड करना है या राइट करना है वो यहां पर आएगा. देन इट ऑल्सो इश्यूज अ कमांड टू दी डिस्क कंट्रोलर कि भाई ये डेटा जो है डिस्क से रीड कर दे. Once the data, it start reading the data is there into this buffer, it sends an interrupt. अब इसको पता है कि DMA controller है तो this controller will send. So basically what it will do, this DMA controller will request once it's find that the data is there into the disk controller, it DMA request transfer to the memory. ये जनाब इसको कहेगा कि मेमोरी जो है वो ट्रांसफर शुरू करनी है और ये डेटा जो है यहां से अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस दिस डेटा विल स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग इट इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये जनाब इसका डेटा कंप्लीट करेगा. वंस ऑल द डेटा is completed, then it will send an acknowledgement yes the data has been dead, and then it will interrupt the CPU को बताएगा कि job has been done. अगर इसको आप देखें मैंने इसको शायद steps में भी आपके लिए लिखा है. ये काम जो मैंने आपको explain किया थोड़ा सा जल्दी में किया explain तो थोड़ा इसको let us read it out. Step number 1 में CPU programs the DMA controller register what and where to transfer. It also instructs device controller to read the data from disk into the buffer and perform checksum. ठीक, और ये है आपका ये स्टेप नंबर 1 जिसमें कि आपने ये स्टेप नंबर 1. ठीक, और ये इसका एरो आ गया. उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 ये क्या है? DMA controller issues a read request over a bus to disk controller. The disk controller reads the memory address to राइट. ठीक है, इसके बाद ये उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है. पहले ये कोलैबोरेशन हो रही थी सीपीयू के तहत, अब ये कोलैबोरेशन हो रही है. नाउ इट प्रोवाइड्स कि जनाब ये एड्रेस है जिसके ऊपर ये डेटा पहुंचाना है. तो पहले ये काम सीपीयू कर रहा था, नाउ ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है इंस्टेड ऑफ सीपीयू, ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये रीड करना है. द डेटा सिस्टम बस के थ्रू आएगा और इट विल गो अप देयर. सो स्टेप नंबर 3 क्या है? The disk controller write to the memory is another bus cycle. वो बार बार उस सिस्टम बस को लेगा और उस बस के ऊपर डेटा डालेगा और वो डेटा will be transferred to the memory of the computer. उसकी कंप्यूटर की मेमोरी में वो ट्रांसफर हो जाएगा. After the memory write, device controller sends acknowledgement to DMA bus. Step number 4. जब ये राइट करवेगा, क्या चीज राइट करेगा? वर्ड या बाइट. Okay, then it will send an acknowledgement कि I have done the job. अब ये क्या करता है? Now DMA increment the memory address and decrement the word count. If count is greater than 0, इसका मतलब है कि अभी मजीद डेटा जो है वो ट्रांसफर करना बाकी है, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग एड्रेस भी है और वॉल्यूम भी है, साइज भी है इन टर्म्स ऑफ बाइट काउंट में. तो बाइट काउंट को मेमोरी को इंक्रीमेंट करेगा. इंक्रीमेंट क्यों करेगा? ताकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट कंसेक्टिव एड्रेस के ऊपर चला जाए. इसको इंक्रीमेंट करेगा मेमोरी एड्रेस को और डिक्रीमेंट करेगा बाइट काउंट को. अगर 100 रीड करनी थी, 2 बाइट्स रीड हो गई, तो अब डिक्रीमेंट होके वो 98 रह जाएगा, फिर 96, फिर 94, 92, हत्ता के 4, 2 और 0. If it is 0, means कि all the data has been transferred. Otherwise, if the byte count is 0, DMA interrupt that the memory transfer has been completed. अगर ये काउंट जब 0 हो जाएगा, यहाँ तो इसको लूप में चारों स्टेप्स चलते रहेंगे. ठीक है, अगर आप देखें मैंने यहाँ पे बताया कि इट विल रिपीट स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4 जब तक कि काउंटर 0 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक पूरे का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं हो जाता. ओके, once the counter goes to 0, तो फिर it will send an interrupt to CPU और ये है वो interrupt कि जनाब काम जो आपने असाइन किया था has been completed. Now DMA कंट्रोलर के मोड्स जो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपसे कहा ना बर्स्ट मोड में, वहां पे जिक्र किया था कि आप वर्ड बाय वर्ड भी लेके जा सकते हैं और बर्स्ट मोड के अंदर भी लेके जा सकते हैं. वन इज कॉल्ड अ साइकिल स्टीविंग मोड दैट ट्रांसफर गोज ऑन वर्ड एट ए टाइम या बाइट एट ए टाइम competing with CPU for bus cycle. Idea is that the CPU uses the occasional cycle to DMA controller called cycle steering.
एक मोड जो हमने यहाँ पे बात की वो ये थी कि जब इस डेटा को यहाँ पर जाना है तो ये बस चाहिए, तो ये बस जो है और नॉर्मली यूज बाय द सीपीयू। सो व्हाट इट विल डू, इट विल, जब भी ये बस अवेलेबल होगी ये पिकअप करवेगा बस को, ताकि ये डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होता रहे। इसको हम कहते हैं साइकिल स्टीविंग, ठीक है। ओकेजनली यू पिकअप द डीएमए कंट्रोलर जो है वो बस का साइकिल पिक कर लेता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा ऑन टू द बस। दिस इज कॉल्ड साइकिल स्टीविंग। दूसरा है बर्स्ट मोड। डीएमए कंट्रोलर ग्रैब्स द बस एंड सेंड्स अ ब्लॉक। जब सेकंड मोड क्या है, वंस द डीएमए कंट्रोलर गेट्स द बस, तो उस बस को वो अपने पास रखे रखता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब तक कि वो पूरे का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं कर देता। बजाय इसके कि हर दफा एक एक वर्ड के लिए वेट करे बस का, उसकी बजाय जब उसके हाथ चढ़ जाती है बस, तो बस को काबू कर लिया और पूरे का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया। इसको हम कहते हैं बर्स्ट मोड, ओके। और जो तीसरा मोड है वो फ्लाई बाय मोड है। इसमें डीएमए कंट्रोलर टेल्स द डिवाइस कंट्रोलर टू सेंड वर्ड to it instead of memory, can be used to transfer data between devices। जो तीसरा है उसको कहते हैं फ्लाई बाय मोड। वो कहता है कि भाई मेमोरी में डेटा भेजने की बजाय ना, ये डेटा जो ये वाला जो 3 जा रहा था, सॉरी ये काफी, इसको अगर मैं देखूं यहाँ से इसको, अब बजाय इसके कि ये कहे कि जनाब डेटा जो है वो मेमोरी में राइट करो, ये इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि भाई डेटा जो है वो आप मुझे प्रोवाइड करें। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ओके। सो इसको हम कहते हैं फ्लाई बाय मोड। द डीएमए कंट्रोलर टेल्स द डिवाइस कंट्रोलर टू सेंड वर्ड टू इट इंस्टेड ऑफ मेमोरी एंड दिस कैन बी यूज्ड। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो मेन एडवांटेज इसका ये है कि आपने अगर मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर आपने डेटा जो है मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना है, तो फिर अब वो डिवाइस क्या है, वो मेमोरी इटसेल्फ है। वो क्या करेगी कि वो डेटा जो है डीएमए कंट्रोलर को देगी एक ब्लॉक का, और डीएमए कंट्रोलर उससे लेने के बाद दोबारा मेमोरी की दूसरी लोकेशन पे लिख देगा। अगर डिस्क टू डिस्क डेटा ट्रांसफर करना है, तो एक ब्लॉक का डेटा जो डिस्क तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने एक ब्लॉक से उठाया बफर के ऊपर और मैं उसके ऊपर राइट कर रहा हूं। पहले वो रीड करेगा एक से, बफर फिलअप करेगा, वो बफर प्रोवाइड कर देगा डीएमए कंट्रोलर को, और उसके बाद क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर जो है उसको वापस राइट करवा देगा। तो अगर सेम डिवाइस टू डिवाइस आपने जाना है, तो ऐसी सूरत में एक और मोड हमारे पास अवेलेबल है जिसको फ्लाई बाय मोड कहते हैं, और इसके लिए हम मेमोरी टू मेमोरी कॉपी कर सकते हैं और डिवाइस टू डिवाइस या डिस्क टू डिस्क हम कॉपी कर सकते हैं। कपल ऑफ क्वेश्चंस। Why buffer data in, why we buffer the data in controller? ठीक, अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि वो देखता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ गई, उसका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या एरर करेक्शन कोड ईसीसी परफॉर्म करना होता है, उसका चेक सम परफॉर्म करना होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बस में बी बिजी एंड नीड टू स्टोर डेटा सम प्लेस, क्योंकि उस डेटा ने ट्रांसफर होना है बस के ऊपर, इस बस के ऊपर जाना है, और ये बस जो है एक लग्जरियस रिसोर्स है। जब वीआईपी मूवमेंट होती है ना, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बस ये रोड ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो सीपीयू है ये इस बस के ऊपर ज्यादा होल्ड रखता है, तो देयर इज ए चांस कि ये बस जनाब इस बेचारे कंट्रोलर को ना मिले, तो डेटा तो कंटिन्यू स्ट्रीम में आता रहेगा, तो वो तो डेटा विल बी ओवररन, वो आगे बस पे जाएगा नहीं, तो व्हाट विल हैपन, यू विल लूज द डेटा। तो उसके लिए दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कि बस में बी बिजी, सो यू वुड नीड टू पुट द डेटा समवेयर इनटू द स्टोरेज। इज डीएमए रियली वर्थ इट? क्या हमें डीएमए की वाकई जरूरत है? लेट अस सी कि कहां पर हम कहते हैं कि हमें डीएमए की जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर डीएमए इफ वी डोंट हैव टू मच डेटा टू ट्रांसफर। अगर थोड़ा सा डेटा आपने रीड और राइट करना है, ऐसी सूरत में डीएमए वुड बी एन ओवरहेड, और आप डायरेक्ट सीपीयू को यूज करवें और डीएमए जो है ना वो आप
यूजफुल नहीं हो सकता। सेकेंड, if CPU is much faster than DMA controller and can do the job faster, अगर CPU ने इंस्ट्रक्शन देने के बाद फारिग ही बैठना है और CPU can do the job 10 times, 20 times, 100 times faster than DMA controller, then it's better that the job should be done by the CPU. CPU अपने थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, एक थोड़े से टाइम क्वांटम में should be able to complete the task instead के वो DMA कंट्रोलर को यूज करें। ऐसी सूरत में हमें DMA कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, embedded system में usually the CPU is required to carry out a limited task, और जब वो कोई इस तरह की रीड राइट कर रहा होता है तो CPU जो होता है इज आइडल। तो ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर DMA जो है वो यूजफुल नहीं है, रादर के CPU को आप आइडल करके एक और कंट्रोलर विच इज अ स्लोअर वन उसको यूज करें। हम ऐसी सूरत में DMA कंट्रोलर जो है वो यूज नहीं करते। वी डोंट प्रेफर टू हैव अ DMA। ओके, I think just give you a quick introduction of PC interrupt structures, and I guess I will be discussing it later on. Another way through which we can carry out the read and write is called the PC interrupt structure. Okay, here we can see that the different devices are connected with the interrupt controller. Okay, device is a desk, it could be a keyboard, it could be a clock, it could be a printer. So different devices are connected to the interrupt controller, and then this interrupt controller is connected with the CPU. So the connection between the devices and the interrupt controller are used to interrupt the CPU. अब बजाय इसके कि devices direct CPU को interrupt करें, whenever a device require the attention of the CPU, it sends a signal, it asserts a signal, and that signal is picked up by the interrupt controller. और ये याद रखता है कि इसको किस device ने interrupt किया था। Based upon that, कि जो डिवाइस ने इसको इंटरप्ट किया है, देन इट परफॉर्म द इंटरप्शन रिक्वायरमेंट कि क्यों इंटरप्ट किया था। ठीक है, सो ऐसी सूरत में इट जस्ट सेंड, सबसे पहले डिवाइस अपना काम करने के बाद इंटरप्ट करती है इंटरप्ट कंट्रोलर को, देन द कंट्रोलर इश्यूज दैट पास दैट इंटरप्ट टू द CPU, और फिर देन CPU एक्नॉलेज टू द इंटरप्ट कंट्रोलर। यानी कि अब CPU और डिवाइसेस के बीच में ये हमने एक और डिवाइस लगा दी जिसको इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं। ये इसलिए लगाई कि डिवाइसेस डायरेक्टली CPU को ना इंटरप्ट करें, क्योंकि इट हैज टू टेक सर्टेन डिसीजन। फॉर एग्जांपल कि इनमें से प्रायोरिटी किसकी है, हो सकता है कि डिस्क हैज हायर प्रायोरिटी, क्लॉक हैज हायर प्रायोरिटी देन डिस्क, and disk has higher priority than keyboard, or keyboard has a higher priority than the printer. So you can define different priority levels, और ये सारा काम जो है वो interrupt controller करता है। Then also the interrupt controller saves the interrupt until that service has been provided. फिर interrupt controller is intelligent enough कि किस device के लिए कौन सी software को हमने use करना है in order to provide the service. Okay, so interrupt processing. Each device asserts a signal on a bus assigned until attention by the interrupt controller. Controller detects and distinguish the interrupt signal by the device. देखता है कि ये interrupt जो है किस device की तरफ से आया, disk की तरफ से आया या clock की तरफ से आया. If no other interrupt is pending, it immediately processes that particular interrupt. Provided के interrupt disable नहीं किया हुआ CPU ने. अगर CPU ने interrupt disable किया हुआ है, ऐसी सूरत में interrupt controller CPU को interrupt नहीं कर सकता. But if it is interrupt enable जो है वो है, ऐसी सूरत में interrupt controller can interrupt the CPU. So otherwise the process, अगर कोई और process का interrupt already जो रिसीव नहीं हुआ, अगर फर्ज करें दो डिवाइसेस का इंटरप्ट साइमल्टेनियसली रिसीव होता है, तो द डिवाइस विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज सर्व्ड फर्स्ट और दूसरे के इंटरप्ट को इग्नोर कर दिया जाता है. लेकिन वो डिवाइस बग करती रहती है,
वो कीप ऑन असर्टिंग द सिग्नल, उस सिग्नल के ऊपर वो मैसेज भेजती रहती है इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ द इंटरप्ट कंट्रोलर. सो कंट्रोलर पुट्स द नंबर ऑन एड्रेस लाइन टेलिंग सीपीयू विच डिवाइस वांट्स द अटेंशन. इंटरप्ट को देता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि कौन सी डिवाइस है, उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद वो एक प्रिसाइज वेक्टर जो उससे रिलेटेड होता है, बिकॉज दिस इज एजुकेटेड वन, इसका जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है उसमें पता है कि ये कौन सा इंटरप्ट है और इसके लिए कौन सी वाली रूटीन चाहिए. तो वो नंबर जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल से, उस नंबर को वो इंटरप्ट के साथ प्रोवाइड करता है टू द सीपीयू. Then the table of interrupt points to the interrupt service routine, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उस टेबल में से required interrupt service routine जो है interrupt vector से उस टेबल से एड्रेस पिक करके that is provided to the CPU. Number on the address line act as an index into the interrupt vector. वो जो interrupt नंबर दिए ना, interrupt 21, interrupt 13, interrupt 7, ये आप अगर देखें IRQ7, ठीक है ना, माउस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल IRQ14 हम प्रिंटर के लिए यूज करते हैं, IRQ0 जो है पेज फॉल्ट के लिए यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट इंटरप्ट्स के नंबर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, और ये नंबर जो है वो डिटरमिन करता है कि इसके इंटरप्ट की कौन सी सर्विस रूटीन चाहिए और इसको कैसे हैंडल करना है. सो इंटरप्ट वेक्टर कंटेन्स द प्रोग्राम काउंटर विच पॉइंट्स टू द स्टार्ट ऑफ द सर्विस रूटीन. यानी कि जब इंटरप्ट आएगा तो ये पहले डिटरमिन करेगा कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट किया था, फिर उसका एक नंबर निकालेगा कि ये इंटरप्ट का नंबर है. ये इंटरप्ट नंबर जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है उसमें से एक एड्रेस निकालेगा जो कि एड्रेस होगा आपका, लोड होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर. और ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये जनाब बेसिकली बता रहा है कि ये जो इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर जो है आपका ISP, इसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक्नॉलेज द इंटरप्ट, ठीक है, it acts means it acknowledges the interrupt, it saves the information about the interrupt program. Now where to save this information, that is a question. It can save the interrupt as a user process, or user process means user के एरिया में जो प्रोसेस है उसका एक अपना स्टैक है और कर्नल का स्टैक अपना है. तो it has got both options. Either it can save the interrupt into the user area or it can save the interrupt into the kernel area. और उन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें हैंडल करना है. It saves the interrupt into the user process. Then जो stack pointer that has been provided into the user process, वो तो आम यूजर का स्टैक पॉइंटर है और यूजर कोई भी ब्लेंडर कर सकता है. तो उसका स्टैक पॉइंटर जो होगा that might not be valid. वो एक इलीगल स्टैक पॉइंटर दे सकता है जो कि क्या करेगा, सारे प्रोग्राम को क्रैश करवा देगा, और वो एक गलत जगह पर आप जब लोड करेंगे और एक इनवैलिड जगह पर लोड करेंगे तो दैट कुड ब्रिंग इन अ डिजास्टर. या वो स्टैक पॉइंटर जो है वो पेज की बाउंड्री के ऊपर है, तो जैसे ही आप उसको सेव करना शुरू करते हैं पेज एंड हो जाता है, एक पेज फॉल्ट अकर होगी. सो व्हाट विल हैपन, इंटरप्ट दर इंटरप्ट, एन इंटरप्ट विद इन एन इंटरप्ट. अब ऐसी सूरत में जो सेकंड इंटरप्ट अकर हुआ है उसके डेटा को कहां सेव करें, क्या वो फिर यूजर प्रोसेस में जाए या कर्नल प्रोसेस में जाए. सो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल वी सेव द एनवायरनमेंट एट द टाइम द इंटरप्ट अकर्स. बट if we want to save it into the kernel address space, okay, so we assume because it's a kernel address space which is very restricted, so stack pointer तो एक valid जगह आपको बताएगा और आप properly उसको वहां पे सेव कर सकेंगे. But you have to perform a trap. ट्रैप क्या होता है, यूजर स्पेस से आप ट्रैप करके कर्नल स्पेस में आते हैं. जब आप यूजर स्पेस से ट्रैप करके कर्नल स्पेस में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वंस अगेन आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है उसको वो इनवैलिड हो जाता है, आपका TLB और जो कैश है वो इनवैलिड हो जाता है, और देन यू आर रिक्वायर्ड टू रीलोड इट. जब आप उसको सर्व करते हैं तो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू रीलोड इट लेटर ऑन, और दैट इज अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. बस यहाँ पे दिस इज द लास्ट स्लाइड आई गेस, मैं रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो कैन वी सेव द प्रोग्राम काउंटर एंड PSW? Yes.
if we don't use pipelined or super scaling CPU, but we do use them. हम प्रोग्राम काउंटर और PSW को सेव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं अगर हम सुपर स्केलिंग नहीं कर रहे. सुपर स्केलिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक वक्त में पैरेलल में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. Okay, so we can't assume that all the instruction up to end individual given instruction have been executed. Precise location आपको नहीं पता है. सुपर स्केलिंग के केस में या पाइपलाइन के केस में द बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. जब ये बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ऐसी सूरत में आप प्रिसाइज प्रोग्राम काउंटर को सेव नहीं कर सकते क्योंकि पूरी एक एनवायरनमेंट है, आपको पूरी एनवायरनमेंट सेव करनी पड़ेगी. सो सुपर स्केलर इंस्ट्रक्शंस आर डीकम्पोज एंड कैन एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर. तो ये एक डिफिकल्टी है. वी विल कंटिन्यू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आई विल रिपीट ऑल्सो, ये इंटरप्ट प्रोसेसिंग का मैं क्विकली अगले लेक्चर में भी रिपीट करूंगा इंशाल्लाह. तो आई थिंक इट्स we should call it the end of the lecture today. इंशाल्लाह शॉर्टली नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर इसी पॉइंट से इंटरप्ट प्रोसेसिंग ही के पॉइंट से हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह. ओके, टिल देन खुदा हाफिज, अज़ान के बाद.